Hello, good morning, everybody. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning. And who has not sent me homework on my number? Kate has sent homework. Then exercise number 1 that I have given. If you are not sending homework, then I will put your absent for that day. Only Kate is sending me, has sent, and Khushi has sent the homework. मैम मैंने भेजा है. And Karan also, हाँ शिवानी के नंबर से, yes. Karan है, then खुशी only send the homework. और जीनल बहुत दिनों के बाद आए, क्यों, कहाँ थे आप? मैम एक्चुअली वो कल मैं बाहर गई थी ना इसलिए. तो बस मॉर्निंग में कोई बाहर जाता है, पहले क्लास अटेंड करना है, उसके बाद जाना है. ओके, क्योंकि ग्रामर चल रहा है, और अगर आप टेंस नहीं समझोगे तो बाकी के सारे टेंस फिर कैसे आएंगे, आपको बताओ. वीडियोस देख लो. दिव्य सोनी, टर्न ऑन योर वीडियो. दिव्य Jinal, sit properly at one place. Divya Soni, turn on your video. Can you hear me? दिव्या वीडियो ऑन करो. हाँ, और स्पीकर है ना, अनम्यूट करो. आपका होमवर्क नहीं आता है दिव्या? यस मैम. दिव्या, आपका होमवर्क नहीं आता है. यू हैवंट साइन होमवर्क रेगुलरली. व्हाई? ओके. व्हाट ओके? क्यों नहीं सेंड करते हो? ओके ओके नहीं बोलना है. आप होमवर्क क्यों नहीं सेंड करते हो? मैम मैं जब ने आप होमवर्क दिया था न तब मैं बाहर गया था. ओके, वेरी गुड. हाँ, बाहर गया था. मैंने वीडियो भी रिकॉर्डेड सेंड किया है. इफ यू सीइंग दैट वीडियो, दैट होमवर्क इज ऑलरेडी गिवन इन वीडियो एंड वी आर सेंडिंग आवर रिकॉर्डेड वीडियो इन योर ग्रुप. तो वो वीडियोस आपको देखने हैं. अगर आप बाहर गए हो तो आप वीडियो देखो जो हम रिकॉर्ड करके आपको सेंड करते हैं. ओके, तो उसमें होमवर्क रहता ही है. सारे टीचर्स रिकॉर्डेड वीडियो में जो भी बोलते हैं वो उसमें रिकॉर्ड होता है, मतलब सारे टीचर्स के होमवर्क उसमें आ ही जाते हैं. तो यू हैव टू सेंड योर होमवर्क रेगुलरली, अदरवाइज आई पुट योर एब्सेंट. और रेगुलरली क्लास अटेंड करो. नाउ म्यूट योर सेल्फ. Exercise number 1 for chapter number 6, present tense and simple present tense. Tomorrow, yesterday we have done exercise number 1 के 2 sentences हमने किए थे, 1 and 2. Now sentence number 3. He changes his bag every month. Which tense is there in this sentence? Changes. Which tense is there? Simple present tense. Yes, simple present tense. Good. In third sentence, there is a verb form changes. Okay. And we learn that if a verb form takes S or ES, that means it is in simple present tense. Sentence number 4. He is waiting for me at the Plaza Theatre. Ma'am, he is waiting. He नहीं आएगा. He is the subject. We want only tense form. Waiting. Is waiting. Which tense is there? Is waiting. Yes ma'am. Which tense is there? Present continuous tense. Yes, continuous present tense. Good. Is waiting. ing form is there with the verb form, and whenever ing form we add with the verb form, and with verb form we have to use to be's form. To be's form are am, is, are. Okay. So these to be's form are using with continuous present tense, and in continuous present tense we must add ing with the base form of the verb. मतलब base form के साथ हमें ing भी यूज करना है, और ing के पहले before it we have to use to be's form, and present के to be's form है am, is, are. So here you can see
He is there. He is a subject. So with he we have to use is. Okay, he is a third person singular. That's why we have to use is. So is waiting is your answer. Is waiting. And is waiting is a present continuous tense. Okay. So if a verb form is present continuous tense, so you have to underline it. And if the verb form is in simple present, so you have to circle on it. Fifth one. I am learning to ride a bicycle these days. Ma'am, days and learning. Not days. Days कैसे आएगा? Only am learning. Days नहीं आएगा. हरली कैसे आएगा? S थोड़ी, वो verb form थोड़ी ना है. Day is a noun. वो word है, word है. Days मतलब दिन. दिन is a शब्द है, वो word है, वो verb form नहीं है, action words नहीं है, तो उसको S लगेगा. Days मतलब इन दिनों में. I am learning. So your answer is am learning. Underline it and write down this one. Present continuous. In your grammar notebook, write with me. Present continuous tense. Now sixth one. My mother cooks rice in the evening. Now who will give answer? Jinal will give answer. Jinal. Sir. My mother cooks rice in the evening. Cooks. Yes. Which tense is there with cooks? Present continuous tense. What present continuous? Continuous में ing यूज होता है. कहाँ पे ing दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है ing. हाँ? अनम्यूट रखो. हाँ, तो पहले ध्यान दो अच्छे से. जो पढ़ रहे हैं ना उस पे ध्यान दो. Cooks. Cooks के पीछे s लगा. मतलब this is the main form. D1 है. Cook. Cook मतलब कुछ पकाना. Cook को लग गया s. That means it became simple present. Okay. Now seventh one. Now it is the turn of Divya Soni. Divya Soni. Seventh one. Maya often wears jeans, but today she is wearing a skirt. Your turn. Divya, your turn to give answer. बताओ चलो आंसर क्या आएगा. What answer is come here? Seventh one. Maya often wears jeans, but today she is wearing a skirt. You have to find out simple present and continuous present. Unmute yourself. Unmute yourself. Yes, and give answer. Bolo. Today. Yeah, देखो today. Today is a word. Today मतलब आज. मैम मैं दूं? नहीं, बोलो दिव्य. हम क्या कर रहे हैं? देखो यहाँ पे हम वर्ब फॉर्म ढूंढ रहे हैं. वर्ब फॉर्म मतलब एक्शन वर्ड्स ढूंढ रहे हैं. चेंजेस मतलब बदलना, वेट मतलब राह देखना, लर्न मतलब पढ़ना, कुक मतलब पकाना, कुछ दौड़ना, भागना, नाचना, कूदना, बोलना, बैठना, उठना, नहाना, सोना. दीज आर द वर्ब फॉर्म. वर्ड्स नहीं ढूंढने आपको, शब्द नहीं ढूंढने. टुडे इज अ वर्ड. वो वर्ब नहीं है. वर्ब फॉर्म से आपको टेंस पता चलेगा, वर्ड से थोड़ा पता चलेगा. जैसे कि नेहा, तो नेहा से क्या पता चलेगा मैं कौन सा टेंस हूं? नेहा इज टीचिंग, टीचर इज टीचिंग. तो टीचिंग से पता चलेगा कि इज टीचिंग. दैट मींस इट इज इन कंटीन्यूअस प्रेजेंट टेंस. नाम से थोड़ी ना पता चलता है कि मैं कौन सा टेंस हूं. हरली, चलो हरली कौन सा टेंस है? ऐसा थोड़ी ना होता है. हाउस, हाउस कौन सा टेंस है? ये सब वर्ड्स है. वर्ड्स मतलब कोई टेंस नहीं बताता है. टेंस किससे पता चलता है आपको? वर्ब फॉर्म से. वर्ब फॉर्म्स मतलब एक्शन वर्ड्स. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट वेयर इज द एक्शन वर्ड्स इन दिस सेंटेंस. फाइंड आउट. दिव्य सोनी. That means you are not doing well in your studies.
You are not practicing at your home. Where is your mother? Okay. Now who will give answer? मैम मैं दूं? हाँ बोलो हरदीप. दिव्या देखो चलो मैम कैसे आंसर देते is हैं हरदीप. wearing. Is wearing. Is a Wearing. is wearing. Is a which tense is there? Present continuous tense. Very good. मैम हाँ मेरा आंसर भी यही था। यही था. ओके. और कोई? करण? मैम मेरा भी यही आता है is wearing. मेरा तो अलग है मैम आंसर. दूसरा है wear. हाँ, my answer is different. Maya often wears, है ना? wears में लिखा है WERS. wear मतलब पहनना. WEAR wear मतलब पहनना, तो wear को लगा है S. wears जीन्स. वो हमेशा जीन्स पहनती है, बट आज उसने स्कर्ट पहन के रखा है. Today she is wearing skirt. That means two tenses are there in this sentence. दोनों tense है. is जैसे कि is wearing मतलब continuous tense, ing लगे तो continuous आपको याद रखना है. सिंपल. एंड अगर ses लगे या कुछ भी ना लगे, हरली ses लगे वर्ब फॉर्म को, या फिर ses ना लगे, जैसे कि wear का wear हो, that means wear हो वहां पे, तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लिखना है. तो जैसे कि यहाँ पे आंसर होगा आपका, लिखो. This is the simple present and is wearing. This is the continuous present tense. Now last sentence. He does not like coffee and tea, therefore he is drinking cola. Now Karan will give answer. दिव्या बराबर से देखो, नहीं समझ में आए तो मैम को पूछना है आपको कि मैम मुझे इस सेंटेंस में समझ नहीं आया. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस आंसर. हाँ चलो बताओ करण. Is drinking. Is drinking. Yes, it is the continuous tense and another tense also there. मैम does not. Very good. Yes. Do को देखो, do जो है ना वो मेन फॉर्म है. Do is the main form. V1. और आगे है he is the third person singular. तो मैंने आपको बोला है कि he, she और it, these three are third person singular. तो इसके साथ आपको लगाना है s और es, है ना? बोर्ड पे देखो. Don't see here and there. बोर्ड पे देखो, he, she और it के साथ आपको लगाना है s and es. तो यहाँ पे देखो do है, do के लास्ट में o है ना, o, तो o के साथ हम क्या यूज करते हैं s और es. So it became does, है ना? is became does. तो हम v1 के साथ हमने क्या लगाया? es. किसके साथ लगाया हमने? he के साथ. Because he is a third person singular, that's why we have to use s और es. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. कौन से टेंस के लिए? सिंपल प्रेजेंट के लिए. Which tense? सिंपल प्रेजेंट. कंटिन्यूअस में तो ing ही आता है. कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में तो क्या होगा? ing. और आगे क्या होगा उसके आगे? टू बी फॉर्म. टू बी फॉर्म्स कौन से हैं? am, is and are. am is are plus ing आए तो समझ लो कि that is कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस. और मेन वर्ब फॉर्म यूज हो, मतलब अगर डू यूज हो या फिर डज हो, है ना? इसके अलावा कोई भी वर्ब फॉर्म यहाँ पे दिया हो, प्ले हो, प्ले का प्लेस है, ईट है, ईट का ईट्स है, रन है, रन का रन्स है, दैट मींस इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके चलो, तो लास्ट वन जो बाकी है उसमें लिखना है आपको डज नॉट. सो डज इज अ सिंपल प्रेजेंट and is drinking is a continuous present tense. Okay, so this is your answers for your exercise number 1. Now मैम हो गया खत्म? Have you done? yes मैम. yes. Okay, exercise number 2. Take the correct forms of verb in these sentences.
Exercise number 2. Amit and Ali do or are doing. So Amit and Ali, there are two persons. That means are doing their homework now. Now is used in continuous present tense. देखो sentence में now use हुआ है. What is there? Now. Now का मतलब है अभी. काम चल रहा है. That means it comes in continuous present. So our answer is are doing. Now let's see second one. My grandmother rest or is resting now after the day's work. So Rest is. Sorry. Is resting. is resting is right or wrong? Final. Right. Lock किया जाए. Yes. Right. Yes. So is resting is the correct answer. Is resting. Why this one is correct? Because after this verb form, now word is there. This is the word. Okay, this is the word. Not any verb form. This is the word. शब्द है. तो जो now है वो किसे प्रेजेंट करता है? कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस को. मतलब अभी जो ग्रैंडमदर है वो रेस्ट कर रही है. तो जब भी सेंटेंस में now यूज हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि दिस इज कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस. ओके, है ना? हाँ, हमने कीवर्ड्स दिखाए थे ना, उसमें मैंने आपको now लिखवाया था. We have written that now is so continuous present tense. Now third one. She sweeps or is sweeping her room on Sunday. Sweep. Sweep. The sweeps. Yes. Karan, Divya. Sweeps. Sweep. Sweeps आएगा. क्यों sweeps आएगा? चलो बताओ. क्योंकि now नहीं लिखा है इसलिए. ऐसा नहीं होता है कि now ही आए. now की जगह पे presently आएगा, nowadays आएगा, है ना? जैसे कि recently आएगा. ऐसा नहीं है. listen आएगा, look आएगा. ऐसा नहीं है कि now ही आएगा सेंटेंस में. तो ऐसा आंसर आपको नहीं देना है. क्यों यहाँ पे स्वीप्स आएगा? स्वीप्स मीन्स सिंपल प्रेजेंट आएगा. तो सबको अच्छे से समझना है. सुनो अच्छे से. अगर आप अच्छे से सुनोगे, समझोगे तो आपको टेंसेस का नॉलेज क्लियर होगा. दिव्य सोनी, अच्छे से सुनो मैम क्या बोल रहे हैं. यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट है. आपका राइट आंसर भी राइट है. सी के साथ स्वीप्स यूज होगा. बट क्यों यूज होगा? बिकॉज द सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट. क्योंकि देखो क्या लिखा है, सी स्वीप्स हर रूम ऑन संडेज. मतलब वो हर रविवार को ये काम करती है ना? और सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब ही है कि जो काम आप रोज करते हो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है. जैसे कि सन जो है वो रोज उगता है ना. सन राइजेस एवरी डे. सन रोज राइज होता है. कौन सी दिशा में? ईस्ट में. तो द सन राइजेस इन ईस्ट एवरी डे. तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात है. जो रोज होता है ना जो काम, उसे हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रखना है. जैसे कि आप रोज स्कूल जाते हो, आप रोज नाश्ता करते हो, तो दैट टेंस कम्स ओनली इन सिंपल प्रेजेंट. ओके, अनदर थिंग है कि आपकी जो हैबिट्स है, आपकी हैबिट्स, जैसे कि आप रोज कार्टून देखते हो टीवी पे या कोई स्टोरी पढ़ता है रोज रात को, तो दैट इज योर हैबिट्स. तो हैबिट्स आल्सो कम्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, हैबिट्स आल्सो कम्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. Okay, now your homework is you have to complete this exercise number 2 and send me on my number. Okay, exercise number 2 you have to complete and send me on my number without fail. भूल नहीं जाना है, होमवर्क सेंड करना है. Yes. ओके, हैबिट्स और आपका रेगुलर वर्क जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा. समझ आया ना वो बात? दिस इज द रूल. हैबिट्स एंड रेगुलर वर्क्स आर कम्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, और जो नेचुरल थिंग्स होती है ना, जो नेचुरली होता है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है. जैसे कि सूर्य हमेशा पूर्व में ही उगेगा. ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद वो उत्तर में उगने लगे या फिर पश्चिम में आ जाए. ऐसा होने वाला है? नो, मैम. ऐसा नहीं होगा ना. हाँ, हमारी जो अर्थ है, द अर्थ इज मूव्स अराउंड द सन. पृथ्वी जो है वो सन के आगे पीछे घूमती है. द अर्थ इज मूव्स अराउंड द सन.
तो आप बड़े हो जाओगे तो पृथ्वी जो है वो शनि के आसपास घूमने लगे, ऐसा होने वाला है? नहीं होने वाला है। इट डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगा। तो जो नेचुरल थिंग्स है ना, जो भगवान ने बनाई हुई चीजें है, जो नेचुरल है, तो इट्स ऑल्सो कम्स इन सिंपल प्रेजेंट। उसको कभी पास्ट टेंस में नहीं लिखना है या फिर फ्यूचर में भी नहीं लिखना है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ओके, so these way you have to practice, and exercise number 2 you have to send me on my number today only, okay, without fail। आज ही साइन करना होगा। चलो बाय बाय, टेक केयर। बाय मैम।